Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss a physics complete revision for your PAS round 2 2025. First we have all discussed about round 1 और राउंड 1 में काफ़ी आप लोगों के सही मार्क्स वगैरह भी आए। अभी मैं आप लोगों को एक कंप्लीट रोड मैप बना के दे देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। आज की क्लास में हम फिजिक्स की भी रिवीजन करेंगे और इंग्लिश की भी रिवीजन करेंगे। सही है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में गाइड कर देता हूँ और उसके बाद हम इंग्लिश की रिवीजन्स कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब वेरी फर्स्ट आई विल से कि आपके पास जो फिजिक्स का है वो किन किन चीज़ों को आप लोगों को करना है वो यहाँ पे आप देखेगा। वेरी फर्स्ट फिजिक्स की ये रूटीन आप लोग देख लें। एक तो आप लोगों ने फिजिक्स का जितना आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन दिया हुआ है उस रिकॉर्डेड सेशन में जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स हुई होंगी जो आपको सर वगैरह ने करवाया हुआ है वो सारे रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों ने सुन लेना है। आप लोगों के जो साइड हैं मतलब लेक्चर्स वो कवर हो जाएंगे। सही है। और उसके बाद आप लोगों के पास लेक्चर नोट्स होंगे उनको भी आपने रिवाइज कर लेना है। अब ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग दिस ऑल शेड्यूल ना दैट इज फॉर योर 95 प्लस आउट ऑफ 100। इफ यू आर गोइंग टू टेक योर प्यास राउंड 2 फॉर योर 2025 मस्ट प्रिपेयर दिस ऑल पैरामीटर्स unless you will not। इफ यू वांना एक्सीड बियॉन्ड 90 ना अगर आप 90 से ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये रूटीन है आप लोगों के पास। रिकॉर्डेड सेशन पूरा सुन लें, लेक्चर नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें और उसके बाद आप लोगों के पास एक एंड गेम पड़ी होगी जो आप लोगों को राउंड 1 से पहले बना के दी थी। उस एंड गेम को भी आप लोग कर लें और उसके साथ ये वाली जो आज वाला लेक्चर है टूडेज लेक्चर इसको अगर आप कर लेंगे तो यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। ये इसका फुल फ्लेज होगा। अब those students who are just preparing for today's lecture, they will lie between 70 or 90. Luckily, they can exceed 90 plus. Those who will just cover end game for past round 1, they will lie between 70 to 90. Those who will just cover recorded session or lecture notes, yes, obviously they can exceed 90 plus because that will cover the complete syllabus and your complete strategies for your PAS gaining 95 plus. So I will recommend make sure you have watched this all lecture for today we are going to take inshallah, and then later on that we discussed inshallah for all subjects we will discuss inshallah, but the previous end game must cover that end game also for your PAS round 2. And moreover you can prepare all lecture notes and recorded sessions. So first of all we discuss all the topics and just we discuss all the MCQs that came in your previous paper. Okay, let's start. सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं फिजिक्स के बारे में। अब फिजिक्स के बारे में हमारे पास सारे के सारे ही चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास 11 फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर यूनिट्स एंड स्पेशली द कन्वर्जंस ऑफ यूनिट्स एंड द सेकंड वन दैट इज डायमेंशन टॉपिक एंड they will ask about the pair of dimension which are same or opposite. The third one is about vectors and equilibrium, that is top most favorite for PAS and test vector and equilibrium. Moreover, you can prepare work done from part 1. It's been so many times numericals are asked from work done chapter and graph problems from work done. Similarly, you can prepare power topics and linear momentum and angular momentum. Same goes for centripetal force and centripetal accelerations. And moreover, you can read out the chapter number 6, that is just theoretical based chapter. No numerical will come, I guess so. And must prepare simple harmonic motion chapter, that is quite very important for your PIAS or NUST or any other entry test. Simple harmonic motion is ever important chapter for your entry test. Moreover, you can prepare waves topics, especially the types of waves and all the mechanism that are mentioned in open organ pipe and closed organ pipe. Then we having YDSC, Young's double slit experiment and interference, and must prepare about Newton rings. And last we having chapter 11 which is about thermodynamics. So make sure कि आप लोगों ने ये तमाम chapters को अच्छे से पढ़ लिया है. If we discuss about chapter 12 now,
Capacitor topic is much more important. Similarly, F is equal IL cross B, like force on moving force on current carrying conductor or force on moving charge, that is given Q is equal F is equal Q into V cross B sine of theta. Got it? Moreover, we having galvanometer and the sensitivity of galvanometer. ये बहुत important है galvanometer और उसका conversion especially into ammeter and into voltmeter. And then logic gates are quite very important for your PAS. And we having spectrum topic, especially for hydrogen spectrum and laser topic and X-ray topic. These are much more important for your PAS entry test. We have in chapter 21 that is complete entire important for your any entry test. Then we having AC alternating current chapter. We they can ask from RLC parallel circuit or RLC series circuit. And the top most important is resonance topic. Resonance topic को भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाना है. और उसके बाद हमारे पास वो जनरेटर वाला टॉपिक आ जाता है, एसी जनरेटर वाला, उसको भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने पढ़ के जाना है. अच्छा जी, ये कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं. आई होप आप लोगों को वो सारी चीजें कवर हुई होंगी. अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे तमाम के तमाम इन एमसीक्यूज को. सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिक्स एमसीक्यूज. फिजिक्स एमसीक्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. Everybody is clear about screen that I have shared, and am I audible? All right. So let's start. First of all, we are going to discuss physics portion, physics PAS round 2. That is for PAS round 2 bypass education system. So let's start. First, our target is just to score 95 plus from PAS round 2 and must share your marks at that given number 0304066600. If you are preparing your PAS entry test from our premium batch or you are preparing from YouTube as well, must share your marks at this number 0304066600. Our target is to achieve 95 plus out of 100 in PAS round 1. And many students scored, Alhamdulillah, 80 plus, 86, 85, 84 from round 1. But your next target is to score 95 plus. I know a PAS entry test is kind of hectic test among all other entry tests, but make sure if you are fully done with these all topics and all the MCQs we will share, inshallah, you can easily get 95 plus. It's not quite hectic after doing these all work. Inshallah, many prayers for all of you. May Allah give you true success. So let's start. यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास ये है. अब मैं बारी बारी आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू Huygens principle, wave theory of light, every point of any wave front may be regarded as. उसको किस तरह का पॉइंट रिगार्ड किया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारे पास हाइजेंस प्रिंसिपल है ना, एवरी पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव्स. सो सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन. सेकंड एमसीक्यू इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, एज वी नो ऑल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है? दैट इज 1.6 into 10 raised minus 19 joule ना. So delta option will be right option. Electron volt is actually what? That is a kind of energy. Like electron volt we are measuring in energy. Joule is unit for work or energy, same now, because work and energy are going to be same. So whenever you will ask to find work done or energy, just calculate the work done. We having a relation V is equal W upon में Q, ये हमने रिलेशन पढ़ रखा है. अब उसके अंदर W इज इक्वल टू क्यू वी आ गया है. वी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E instead of Q. So we will use EV. But what's the charge on electron? That is 1.6 into 10 raised minus 19 कूलम. इतना चार्ज है और वोल्ट यहाँ पे 1 वोल्ट पुट करेंगे तो इतना ही एनर्जी बनेगा ना. डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑफ Fahrenheit degree thermometer will be double that of centigrade thermometer is. Actually, they are asking at what value the Fahrenheit thermometer will be double as that of centigrade thermometer. So remember that value will be 160 degree. 160 degree C. So at 160 degree, 160 डिग्री सी के ऊपर जो हमारे पास फॉरेन हाइट थर्मोमीटर है उसकी वैल्यू सेंटीग्रेड से डबल हो जाती है. ऑलवेज रिमेंबर. गॉट इट? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average of AC current and voltage over a complete cycle is.
हमारे पास कंप्लीट साइकिल पे वो कितना हो जाता है। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को एक और भी चीज बता सकता हूँ कि 160 आप लोगों ने याद रख लिया, लेकिन इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि हमारे पास ये कन्वर्जन क्या बनेगी, दैट इज एफ डिग्री, आप लोगों ने शॉर्टकट याद रख लेना, अपॉन में 180, दैट इज इक्वल टू सी माइनस दैट विल टेक एट 0 अपॉन 100 डिग्री, because there are 100 grading or 100 scales in centigrade thermometer, and in Fahrenheit these are 180, starting from 32 and terminate at 180. But we discuss about centigrade thermometer now, that starts from 0 and ends at 100 degree. So we can say that that is the best relation in between Fahrenheit or degree centigrade conversion. So we want to discuss just Fahrenheit will be double as that. So just put that Fahrenheit as 2C minus 32 upon 180 degree, that will be equal to C minus 0 upon 100 degree. So you will come across that multiplying these all, or you can say cross multiplying to each other, you will get that 5 into 2C minus 3, that will be equal to what? That will be equal to 9C. So you can easily get that will be equal to, that is 32 actually. That will be 10C minus 160 is equal 9C. So you can get that is equal to 10C minus 9C, 10C minus 9C, that will be equal to 160. So C will be equal to 160. So at what value of centigrade Fahrenheit thermometer will indicate double value of that of centigrade, that is 160 degrees C. Okay. Next question is the average alternating current and voltage over a complete cycle is, what will be the value of average? That will be 0, because we are talking about average current and voltage now for complete cycle, that is always equals to 0. Next question is Wilson cloud chamber is an instrument used to, Wilson cloud chamber किसके लिए यूज किया जाता है? अब यू नो वेरी वेल के विल्सन क्लाउड चैम्बर हम यूज करते हैं किसी भी अल्फा बीटा या गामा रेस को डिटेक्ट करने के लिए। सो दैट इज बेस्ट फॉर मेकिंग द पाथ आयोनाइजिंग पार्टिकल विजिबल, बिकॉज के इससे पाथ विजिबल हो जाता है, जिससे आप इजिली निकाल सकते हो कि ये अल्फा है, बीटा है या गामा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल क्वांटिटीज विच फॉर्म द बेस फॉर द एसआई सिस्टम आर, एसआई सिस्टम में बेस क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? तो वो हमारे पास यहाँ पे मैथ लेंथ और टाइम सी ऑप्शन के अंदर सारी बेस नजर आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच और वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी, बाल्मर में से हाइड्रोजन को निकालने के लिए हाइड्रोजन के मतलब स्पेक्ट्रम के अंदर से बाल्मर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? दैट इज अमाउंट 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड, अब फ्लूइड रेस्ट पे हो यू नो दैट इज फ्लूइड स्टेटिक्स ना, और अगर फ्लूइड मूवमेंट कर रहा है दैट विल बी फ्लूइड डायनामिक्स, बट दे आर आस्किंग टू फाइंड फ्लूइड्स एट रेस्ट, वी विल चूज बीटा ऑप्शन, दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स। And next question is a solid having regular arrangement of molecules throughout its structure is called, regular arrangement, that will be crystalline solids, like structure of diamond, structure of NaCl, that will be crystalline solids. And next question is for accurate measurement of potential difference, the resistance of the voltmeter must be, they are asking to find accurate measurement for potential difference. If we are going to measure accurately now, resistance should be very high, because we are concerned about potential difference. You know very well, if the value of resistance is kept very high, it means current will be minute, current will be lesser, as much it may be like it may approach to 0. So resistance is maximum, current will be 0, and current is 0, it means all the potential is safe, and you can easily measure that all potential difference. So we have to keep resistance at very high value. C option will be right option. Next question is which of the following radiation possesses greater penetration power? You know very well, gamma radiations having lowest ionization ability but having highest penetration power. Next question is a primary cell has an EMF 1.5 volt. When 5 ohm resistance is connected across it, the current is 2.2 ampere. The internal resistance of the cell will be, we are going to find internal resistance, but we are sure about one relation, that is V is equal IR. Whenever is talking about internal resistance, now actually that relation is V is equal IR, not small r, that is capital R. So we can plug that V is equal I into capital R, but using internal resistance concept now, R may be converted into R plus R. Got it?
So, voltage that come across, that is 1.5 volt, and what is the value of current, that is 0.2, and R, small r, that is internal resistance we are going to find out, and the capital resistance R is 5 ohm. Got it? So you can calculate that R as dividing 1.5 upon 1.2, that will be R plus 5, and you will get R is equal 1.5 upon zero point 0.2 minus 5. So that's gonna be 1 0, and that 0, that will be equal to 150 upon 20 minus 5. So taking LCM, we will get 20, 150 minus 100. That will be 50 upon 20. That will be 2.5. So our value will be 2.5 ohm, because that is internal resistance having unit ohm. Got it? Next question is the wavelength of Davison and German experiment is given by. That is actually given by relation H upon 2 MVE under square root. Next question is which expression gives an SI quantities. SI quantity like अब आपको पता ही है कि चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम हमारे पास SI होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, या दैट इज SI, फोर्स पर यूनिट एरिया, mass per unit वॉल्यूम। देखिए चार्ज पर यूनिट टाइम Q अपॉन T, दैट विल बी आई करंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, सही है। ये वर्क डन पर यूनिट डिस्टेंस, मैस पर, ये इनके ऐसे यूनिट्स नहीं होंगे, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिस्ट कंटेन बोथ स्केलर एंड वेक्टर्स क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, ये तो सारे वेक्टर्स हैं, ये नहीं हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे एरिया है, करंट है, फोर्स है, तो एरिया स्केलर, करंट, और ये भी स्केलर, फोर्स वेक्टर है, वर्क स्केलर है, तो ये सही है। डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये सारे स्केलर है। मास, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, ये भी सारे स्केलर्स हैं। सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज बीटा ऑप्शन, दैट हैविंग बोथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। उसके बाद है अ मैन वेज 240 न्यूटन ऑन मार्स वेयर द एक्सेलरेशन इतना है, ऑन मून यहाँ पे वो इतना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो मैन वेज है, क्या उसका मैस अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसका वेट निकालते हैं, उसका वेट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू mg। गॉट इट। उसका मैस कितना होगा, दैट विल बी वेट अपॉन जी ना। तो वेट हमारे पास कितना है, दैट इज 240, और जी हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4, बिकॉज मून पे तो इतना ही है ना, तो दैट विल बी 4, तो वो कितना निकल आएगा, दैट विल बी 4660। तो ये 60 निकला है, तो वेट कितना निकलेगा, mg। तो मैस तो 60 निकला, जी हमारे पास कितना होता है, दैट इज 2। टू मून के लिए तो 2 होता है, तो ये कितना बन गया, 120 न्यूटन। तो क्या मून पे उसका वेट 120 है, यस इट इज, वी कैलकुलेटेड जस्ट नाउ। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है A stone is projected vertically upward from the ground at an internal speed इतनी है, air resistance is negligible. What is the maximum height reached at the stone? Maximum height हमसे पूछी गई है। तो अब हाइट के लिए हम कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। ओके, थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं, दैट इज 2as इज इक्वल वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, अब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसका ये -10 हो जाएगा, और s की जगह मैं h को पुट कर लूंगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग तो उसका वेलोसिटी 0 है, और माइनस वी आई स्क्र हो जाएगा। तो दैट विल बी -20h इज इक्वल माइनस वी आई स्क्र। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर हम h को निकालना चाहें तो h हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले उसकी वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा, 15 का स्केल है तो 15 इंटू 15 लिख लिया, और नीचे हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 20। गॉट इट। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी, इसको हम 5 पे करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 345 अपॉन 4। तो h हमारे पास कितना निकल आएगा, ऑलमोस्ट हमारे पास 11, 4 1 ज़ा 11 समथिंग निकल आएगा, ऐसे ही है, 11.25 समथिंग आएगा, सही है ना। अच्छा जी, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास h कितना निकला है, 11 समथिंग, सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार चेंजेस एज शोन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। यहाँ पे हमने इस ग्राफ के अंदर से देखना है एक्सेलरेशन इसका कितना होगा।
तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, या तो कहाँ तक जा रहा है 150 तक, या यहाँ तक हो रही है बात, यहाँ तक। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 105 है, स्टार्टिंग जीरो है, अपॉन में हमारे पास टाइम कितना है 4 और स्टार्टिंग जीरो है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास 105/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किस में निकलेगा, बिकॉज ये तो किलोमीटर पर आवर में है, तो ये तो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा ना, वी नीड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 105/4 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 × 60, तो ये हमारे पास सेकेंड स्क्वायर में आ गया। और साथ में हम इसको कर लेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। और किलोमीटर है ना, किलोमीटर के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइडेड बाई हमारे पास 60 × 60 आ जाएगा। गॉट इट, यहाँ पे तमाम चीजें क्लियर है। ओके, अच्छा यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन, अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे ना, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए, और पर और है, तो अब और यहाँ पे मिनट्स में है और फिर सेकंड में, सही है। तो यहाँ पे इसमें आप कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी बनती है, अप्रोक्सीमेटली ये 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनती है, सही है। और आप लोगों को पता है कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है, प्यास के टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ होता है, सही है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं और इसमें अलाउ होता है, ठीक है। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्नूकर बॉल हैज अ मैस इतना, इट हिट्स कुशन एंड स्नूकर टेबल एंड रीबाउंड्स अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। द बॉल अराइव्स, बॉल यहाँ पे अराइव एंड कुशन विद द स्पीड इतना एंड देन लीव्स विद द स्पीड। द बॉल एंड द कुशन आर इन कांटेक्ट फॉर अ टाइम ऑफ 0.60। व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ टेबल बाय कुशन। कि एवरेज फोर्स कितनी लगेगी, जब भी एवरेज फोर्स निकालने का पूछा जाए तो उसके लिए हम सिंपल एक रिलेशन को यूज करेंगे। दैट इज के हमारे पास जो फोर्स होता है, दैट इज एज वी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट गोइंग टू बी अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ MVF - MVI, ऐसे ही है, MVI इस तरह लिखा जा सकता है अपॉन में टी। आप M को कॉमन ले लें, सही है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास V - VF - VI रह गया और नीचे हमारे पास टी रह गया, ऐसे ही है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को आप पुट कर लें तो हमारे पास देखेंगे तो मैथ कितना था, मैथ उसका 200 ग्राम है। उसको आप केजी में कर लें तो ये हमारे पास 200 डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा, 200 डिवाइड बाई 1000, ये केजी के अंदर आ जाएगा, सही है। उसके बाद जो वेलोसिटी थी वो 7 मीटर पर सेकंड थी। और उसके बाद दूसरी जब बाउंस बैक होने के बाद 14 ही है, देख लेते 14 ही है, 14 वो, लेकिन बाउंस बैक होती है तो वो -14 मीटर पर सेकंड ली जाएगी, सही है। और टाइम हमारे पास कितना था, टाइम वाज इक्वल टू 0.6 सेकेंड, सही है, 0.6 ही है, 0.60 सेकेंड, ये सही है। अच्छा जी, अब ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर लें, इस पूरी इक्वेशन में पुट कर लें, तो आप लोगों के पास जो फोर्स आएगी, एवरेज फोर्स वो निकल के आ जाएगी। और वो एवरेज फोर्स ऑलमोस्ट 7 न्यूटन आएगी। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है। अब आप खुद भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पैरा जो हमारे पास पैराशूटिस्ट होता है इज फॉलिंग एट कॉन्स्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये जो सेकंड लिखी हुई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैराशूटिस्ट। क्या जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं? नो। तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं है, बाकी सारी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मास इज रेज्ड वर्टिकली इन टाइम टी, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज EP एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 23 एनर्जी इज EK। व्हाट इज द एवरेज इनपुट ऑफ द मास, इसकी एवरेज इनपुट कितनी होगी, दैट विल बी EP/EK डिवाइड बाई टी। तो ये हमारे पास एवरेज का रिलेशन होगा, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, वेव हैज अ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड एंड अ पीरियड ऑफ 0.28 मीटर सेकेंड। व्हाट इज द वेव लेंथ, वेव लेंथ को हमने निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास V इज इक्वल टू एफ लैम्डा एक रिलेशन होता है। तो यहाँ से V इज इक्वल फ्रीक्वेंसी की जगह 1 टाइम पीरियड इंटू लैम्डा लिख सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू V इंटू टी निकलेगा हमारे पास। तो लैम्डा इज इक्वल टू V हमारे पास कितना है, दैट इज 340, और टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, दैट इज 0.28। इसको मैं 28/100 लिख सकता हूँ ना। तो इसको अब लैम्डा को यहाँ पे आप अलग से कर लें तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितनी निकलेगी, दैट विल बी
0.095 मीटर के करीब निकलेगी। सही है। अब देखें यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवलिंग एट स्टेडी स्पीड इन स्ट्रेट लाइन पासिस क्लोज टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्वर मेजर द फ्रीक्वेंसी। अ कार ट्रेवलिंग टू अ स्टेडी स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन पासिस क्लोजली टू स्टेशनरी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यहाँ पे देखिए 180 हर्ट्स है। तो क्या ये फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा होगी? अब वो क्या है, द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। अच्छा, स्पीड ऑफ कार पूछी जा रही है। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, दैट इज एफ प्राइम विल बी वी अपॉन वी माइनस यू एस। ये कब लगाते हैं? जब कोई मूविंग सोर्स ना ऑब्जर्वर की तरफ जाता है। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाए तो यू प्लस वी यू एस होना था, वी प्लस यू एस होना था। सही है। ये डॉपलर इफेक्ट के अंदर टॉपिक है। उसके अंदर 220 इज इक्वल टू ये 340 स्पीड ऑफ साउंड है, और नीचे ये 340 माइनस ये स्पीड हमने निकालनी है, और ये एफ मल्टीप्लाई बाई एफ है। सही है। तो यहाँ से अब जो हमारे पास एफ डैश है वो कितने निकल आएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दैट विल बी 220 इंटू 340 माइनस एक्स, और ये इक्वल टू 340 एफ आ जाएगी। सही है। इसको इक्वेशन 1 बना लें। अब यहाँ से एक दूसरी कंडीशन अप्लाई करें कि एफ डैश विल बी वी अपॉन में वी माइनस यू एस इंटू एफ, और यहाँ पे एफ डैश इज इक्वल टू एफ डैश अब हम कितने लेंगे, 180 लेंगे। सही है। 180, 180 इज इक्वल टू वी हमारे पास कितना है, ये तो 340 फिक्स है, अपॉन में 340, और यहाँ पे अब हम प्लस वाला लेंगे तो प्लस एक्स लेंगे। सही है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई ये एफ आ गया, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आप बना लें, दैट विल बी 180 इंटू 340 प्लस एक्स, और ये इक्वल टू 340 एफ आ गया। इसको इक्वेशन 2 बना लें। अब दो इक्वेशन है आप लोगों के पास, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 220 आ रहा है। सही है। वैसे यहाँ पे देखें तो ये 180, इसको आप 2 9 0 और 2 1, और यहाँ पे आप लोग इसको डिवाइड करके लिख सकते हो। जैसे 10 को अगर हम करेंगे, जैसे यहाँ पे इसको 10 1, और 1 इधर गया 7 0, उसके बाद ये 0 0 से कैंसिल कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 9 अपॉन, या आप इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी ये बनेगा 9 और ये बनेगा 11। इस पे भी आप डिवाइड करके लिख सकते हैं शॉर्ट करके। अच्छा, अब इधर हमारे पास क्या बचेगा, इधर हमारे पास 9 इंटू 340 और प्लस 9 एक्स हो गया, और इधर हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाई 340 माइनस 11 एक्स हो गया। ये इक्वेशन हमारे पास बनी। अब यहाँ से 9 एक्स और ये इधर आके 11 एक्स हो गया प्लस में, और 11 इंटू 340 और माइनस 9 इंटू 340 हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 340 मल्टीप्लाई बाई ये 002 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ से एक्स आपके पास कितना निकला है, 34 मीटर पर सेकंड। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिस्ट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑर्डर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, दैट इज ये रेडियो वेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद ये 50 तक एमसीक्यूज मैंने करवाने हैं, बाकी 50 आप खुद करेंगे। अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ऑफ वेवलेट लैम्डा इज सेट अप ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, द ग्राफ शोन द वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट y with the distance x at the perpendicular instant of time. The displacement where distance इतना है y1, what is the next two values for x where the displacement y is again equal to y1। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यूज हमने बतानी है y की, जहाँ पे हमारे पास जो y1 के इक्वल डिस्टेंस हमारे पास निकलेगा। तो अब इसके लिए सिंपल इज दैट कि आप लोग यहाँ पे रेडियो जहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास ये λ/2 है, तो ये λ/2 माइनस λ/, दैट विल बी λ/8। तो ये λ/2 को λ/8 में से माइनस करेंगे तो दैट विल बी 8, तो ये 4 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो ये 3 λ/8, पहली वैल्यू बनी 3 λ/8। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास, और दूसरी हमारे पास क्या बनेगी, दैट विल बी 9 λ/8। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सही है। तो आप यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे, दैट विल बी 9 λ/8। तो ये बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग एट 2 इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 12 हर्ट्ज है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव को निकालना है। तो यहाँ से सिंपल इज दैट, स्पीड ऑफ वेव को निकालने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v इज इक्वल टू एफ हमारे पास कितनी है, 12 है, और लैम्डा हमारे पास कितनी आ रही है,
दैट इज लैम्डा हमारे पास नहीं है, तो इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इसका ग्राफ कहीं पे बना होगा, ये ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ से लैम्डा अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, आपको पता है ये हमारे पास कितना होगा, दैट इज लैम्डा/2, ये भी लैम्डा/2 और ये भी लैम्डा/2। तो ये 3 लैम्डा/2 और ये इक्वल टू 90 सेंटीमीटर है ना, 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, 2 × 90 डिवाइड बाई 3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 60/100 मीटर में आ गई, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, सही है। 3 3 90, तो ये 60, इसको डिवाइड बाई 100 किया क्योंकि मीटर में करने के लिए। अब ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें, दैट इज 60/100। गॉट इट। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बनता है, 7.2 मीटर बनता है, मीटर पर सेकंड बनता है, मीटर पर सेकंड। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज 7.2 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द लाइट फ्रॉम टू लैम्प्स फॉल ऑन अ स्क्रीन, नो इंटरफेरेंस पैटर्न। अब जब दो लैंप से लाइट आ रही है तो इंटरफेरेंस क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो दोनों जो लैंप्स होते हैं ना, वो हमारे पास कोहेरेंट नहीं होते हैं। कोहेरेंट होना चाहिए, उनका से फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टेड एट अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एज शोन इन द फिगर, विच डायग्राम शो। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे शायद मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि which diagram could show all the possible direction of the light after passing through the grating the maximum intensity। maximum intensity अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी लो है, यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे बी, यहाँ पे भी लो है, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव रिजल्टेंट विद इट्स इक्वल टू आइदर द एंगल विल बी 120। आपको पता है ये रिजल्टेंट कब किस पे एंगल पे सेम आता है, 120 पे, फोर्सेस के 120 पे सेम पे आता है। यानी अगर दो वेक्टर्स हैं और उन दो वेक्टर से आगे एक सी रिजल्टेंट आता है और ये तीनों सेम है, तो इट मींस देयर एंगल इज 120 डिग्रीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अकॉर्डिंग टू विच इज ग्रेटर एंड डेंसर मीडियम देन इन एयर मीडियम। तो जो हमारे पास ये कर्पस्कुलर थ्योरी है उसके मुताबिक ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, रेयर मीडियम, दैट इज कर्पस्कुलर थ्योरी। और उसके बाद रियल इमेज इज फॉर्म बाय कनकेव, इतना वो टाइम है, इफ द मिरर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स फोकल लेंथ विल बी। फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है, सिंपल इज दैट, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1 ये 20 प्लस 1 ये हमारे पास हमने क्या निकालना है, q को निकालना है। तो q हमारे पास 4.5 टाइम्स आ रहा है ना, तो इसका मतलब है इसको हम 9/2 टाइम ऑफ p लिख सकते हैं, और p हमारे पास 20 है, तो 9/2 इंटू p कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 10 इंटू 9 दैट विल बी 90। तो ये कितना पुट किया जाएगा, 90। तो 1/f विल बी इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 180 आता है या 180, तो 20 यहाँ पे ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 9 और प्लस ये हमारे पास 2, तो ये कितना बन जाएगा, 11/180। तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180/11। अब इसको डिवाइड करके लिख लें। जब इसको डिवाइड करके लिखेंगे यू विल गेट द वैल्यू, जो कि हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, देखते हैं, 180/11। अच्छा, ये डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है, तो ये डिवाइड करके नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वी कैन नॉट मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज के in nuclear dash hydrogen nuclei to form helium nuclei releasing energy, which word correctly complete gap 1 and gap 2। gap 1 और gap 2 को कौन completely फुलफिल करता है। तो यहाँ पे देखें, इन न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन के अंदर होता है और न्यूक्लियाई ज्वाइन ज्वाइन करते हैं, तो फ्यूजन और ज्वाइन वर्ड होने चाहिए, फ्यूजन और ज्वाइन। तो यहाँ पे देखें तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आ रहा है राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल रीजन। अब आपको पता है लाइमन अल्ट्रा वायलेट में आता है, बाल्मर विजिबल रीजन होता है, पास्टन इंफ्रारेड रीजन होता है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड है, पी फन सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन होता है, और हम फ्रीज भी इंफ्रारेड होते हैं। तो विजिबल रीजन इज बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन, सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड पे, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लाइट एमिटिंग डायोड एमिट्स लाइट ओनली
ये आप लोगों को पता है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग इसकी की जाता है भी, ये लाइट को एमिट करता है। रिवर्स बाइसिंग में ये एमिट नहीं करता है। गुड कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास होता है 10⁻⁷ ओहम पर मीटर। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ ए बुकेट कंटेनिंग वाटर इतना है, व्हाट इज द वर्क डन पुलिंग अ बुकेट 10 मीटर अबव, pouring a uniform rate from the hole, there is a loss of 2 kg water in it reaches the top। जी यहाँ पे बता दिया हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने मास कितना गिवन है, दैट इज 10 kg। सही है। तो फोर्स हमने निकालनी है, तो वो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो mg के इक्वल होगी। तो मास 10 है, जी भी 10 है, तो दैट विल बी 100 न्यूटन। वॉट इट। उसके बाद अब वेट में कितना कमी आता है, 2 kg लॉस हो जाता है, तो 10 - 2 × 10 कर लेंगे तो ये 80 न्यूटन आ गया। सही है। अब एवरेज फोर्स निकालने के लिए पहले 100 निकली, फिर 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हमारे पास कितना निकल आएगा, 90 न्यूटन की एवरेज निकालना वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी। तो एफ हमने 90 निकाली, डी उसने कितना बताया हुआ, डी इज 10 मीटर। 10 मीटर है ना। अब 10 मीटर, तो ये कितना बन जाएगा, 900 जूल हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41। A long straight wire carries a current of 10 ampere. An electron travel with a speed इतना parallel to the wire meter. The force exerted by magnetic field to the current to the electron, ये हमारे पास फोर्स कितनी होगी, that will be F is equal, F is equal हमारे पास आई एल बी होता है ना, या क्यू वी बी होता है हमारे पास एक रिलेशन, फोर्स ऑन चार्ज पूछी जा रही है, क्यू वी बी। तो यहाँ से बी आपको पता ही है, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे μ0I/2 πr। सही है। तो यहाँ पे सिंपल इज दैट, इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, एफ इज इक्वल वी, क्यू की जगह पे क्यू आ गया, वी आ गया, बी की जगह पे μ0I/2 πr आ गया। सारी वैल्यूज को पुट करें, एफ इज इक्वल टू क्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी हमारे पास कितना आ रहा है, वी हमारे पास 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सही है। और म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। सही है। और उसके बाद म्यू नॉट आई, करंट हमारे पास कितना है, करंट इज 10 एम्पेयर, तो ये 10 भी साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई 3.14 आ गया, और आर हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी 0.1। सही है, 0.1 है। तो ये सारी वैल्यूज को पुट करके निकालोगे, दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। तो राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आप इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके लिख सकते हैं। द रेडियस ऑफ द ब्लेड ऑफ ए फैन इज 0.3 मीटर, इट इज मेकिंग 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट द टिप ऑफ द ब्लेड इज। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, सिंपल इज दैट, एक्सेलरेशन आर हमारे पास कितना आ रहा है, आर हमारे पास है 0.3 मीटर। सही है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/10 मीटर लिख सकता हूँ। उसके बाद ओमेगा हमारे पास 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट है ना, इसको आप 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई/60 कर सकते हो, तो ये हमारे पास 40 पाई इन रेडियन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये ऑलमोस्ट पाई की 3.14 पुट करो, तो ये 125.6 के इक्वल एग्जैक्ट निकलता है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। आर हमारे पास 3/10 है, और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास कितना है, 125 मल्टीप्लाई बाय 125 क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना निकलता है, दैट इज ये हमारे पास 4732 पॉइंट समथिंग निकलता है, जिसको बीटा ऑप्शन हम कह सकते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद 43 वाला है, एन एलिवेटर हैज अ मास इतना, व्हेन द टेंशन ऑफ द सपोर्टिंग केबल इज इतना, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकालना है, सिंपल इज दैट, टेंशन की फोर्स हमारे पास कितनी है, 48,000 न्यूटन। सही है। और मास हमारे पास कितना है, 4000 kg। तो W इज इक्वल टू mg हमारे पास होता है। सही है। तो W हमारे पास 40,000 निकल आएगा। सही है। तो T - W होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्टिंग केबल टेंशन की बात हो रहा है अपवर्ड, तो टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे, तो ये नेट फोर्स के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास 48,000 निकला, माइनस ये 40,000 है, तो ये MA के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास नेट फोर्स MA हमारे पास होती है ना, तो यहाँ पे M की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दे, तो ये हमारे पास कितना निकला, ये 8,000 इक्वल टू मास कितना है, दैट इज 4,000 इंटू A। तो A कितना निकल आएगा, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही है।
4000 को 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये 2 निकला है। सो राइट ऑप्शन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44 वाला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप same as that of first overtone of an open pipe, the ratio between their length will be, ratio उनकी लेंथ के दरमियान में कितना होगा, that will be close pipe के लिए F2 और ओपन के लिए हमारे पास F2। तो ये कितना होगा, ये 3F1 है और दूसरा हमारे पास 2F1 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास रेशो कितना बनेगा, 3 इंटू, यहाँ पे देखें तो दैट विल बी F1 इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी V/4L होती है और इसकी फंडामेंटल V/2L होती है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 3/4L इक्वल टू 1/L। ये से कैंसिल हो जाएंगे तो दैट विल बी 3/4। राइट ऑप्शन विल बी एल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हीट इज एंटर इन द सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज, जब भी हीट किसी सिस्टम में एंटर होगी तो एंट्रोपी हमारे पास हमेशा क्या होती है, एंट्रोपी हमारे पास इंक्रीज होती है। सही है। सो राइट ऑप्शन विल बी पॉजिटिव, इंक्रीज पॉजिटिव में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री ऑफ दीज क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट विच हैज अ डिफरेंट, डिफरेंट यूनिट किसका आ रहा है, तो वो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास सबका एनर्जी और डिस्टेंस का और फोर्स का न्यूटन, इन सब का न्यूटन आ रहा है, लेकिन पावर इनटू टाइम का न्यूटन नहीं आता है। सो जो सी ऑप्शन है दैट विल बी डिफरेंट, डिफरेंट है, उसने डिफरेंट ही पूछा हुआ था। उसके बाद विच ग्रुप क्वांटिटीज ओनली वेक्टर, वेक्टर की क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, वेक्टर की क्वांटिटीज यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन में है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, what is possible unit for the product VI where V is the potential difference and I resistor current through the same resistor, that will be Newton meter per second। delta option will be right option। उसके बाद है हमारे पास, अगर thrown a ball vertically upward it takes time इतना return to hand, assume a resistance negligible, what is the initial speed with which of the ball is thrown। इनिशियल स्पीड आप लोगों ने निकालनी है। इनिशियल स्पीड के लिए हम करेंगे, हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू VI+AT। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, VI वी हैव टू फाइंड, और ऊपर की तरफ फेंका है तो ये -GT हो जाएगा। तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी निकलेगी, VI इक्वल टू +GT, जी कितना है 10 है, और टाइम वो कितना है 3.2, तो दैट विल बी 16 मीटर पर सेकेंड। सो 16 मीटर पर सेकेंड कहीं पे है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15.7, 15.7। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम P, वेलोसिटी V, एंगल हॉरिजॉन्टल, लेंस Q, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस R एंड P, आफ्टर टाइम, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी, आपने बताना है विच इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सी इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास R=VT कोसाइन ऑफ थीटा ही बनेगा, यस यही बनेगा। अच्छा, अब आप लोगों को जो सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन, आधे मैंने करवा दिया, आधे ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, इनको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। दिस वाज ऑल अबाउट योर फिजिक्स। और इसी तरह आप लोगों के लिए ये इंग्लिश का पोर्शन भी है, ये इंग्लिश के पोर्शन भी आप लोग देख लें, इंग्लिश के पोर्शन की भी ये पूरी PDF आप लोगों को आ जाएगी। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से ओवरव्यू कर लेना, जैसे सिनोनिम्स वगैरह, एंटोनिम्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कुछ सिनोनिम्स और आ रहे हैं इंपॉर्टेंट जो प्यास के अंदर पूछे गए। वेनिरेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, वर्शिप होता है। उसके बाद एबंडेंट आ जाता है, एबंडेंट हमारे पास आता है प्लेंटी के मीनिंग में। उसके बाद हमारे पास मेटिकुलस आ जाता है, मेटिकुलस हम बोलते हैं प्रिसाइज के मीनिंग में, ठीक है, प्रिसाइज के मीनिंग में आता है। उसके बाद एम्बिगुअस आ जाता है, एम्बिगुअस कहते हैं ना कंफ्यूज होने वाली स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंफ्यूजिंग आ जाएगा। इसी तरह आप लोग इसको ये देखते जाएं, सारे का सारा आप लोगों ने ये इसको नोट कर लेना, ये आप लोगों को सोल्यूशन के साथ PDF आ जाएगी, सिंपल इज दैट। तो इसको भी आप लोगों ने ओवरव्यू कर लेना है। तो ये आपके फिजिक्स और इंग्लिश के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों को हेल्प करेंगी। बाकी मैंने आपको कंप्लीट लेआउट बताया कि कंप्लीट लेआउट क्या होगा, कि आप लोग जो प्रीमियम बैच वाले स्टूडेंट हैं वो लेक्चर नोट सारे पढ़ के चले जाएं, और साथ में जो रिकॉर्डेड सेशन आपको दिया हुआ है, यानी जो रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं जो प्रीवियस बैच के हैं वो भी सुन लें। साथ में एक एंड गेम आपको प्यास की मिलेगी, आप लिखें
यूट्यूब पे प्यास एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम। फिजिक्स की भी मिलेगी एंड गेम, केमिस्ट्री की भी मिलेगी, मैथ की भी मिलेगी, इंग्लिश की भी मिलेगी, बेसिक मैथ की भी मिलेगी, सारी एंड गेम्स मौजूद हैं। उधर से आप लोग पढ़ें, यानी नंबर 1 लेक्चर नोट्स पढ़ें, नंबर 2 रिकॉर्डिंग सुन लें, नंबर 3 ये वाली यूट्यूब वाली एंड गेम सुने, और नंबर 4 ये आज वाला लेक्चर। तो आप लोग फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। सो आई होप यू गॉट दिस लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, और कोई और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।